سلام الله تعالى عليكم أجمعين. هذه ساعة الفرح والسرور لنا جميعا أن مؤسستنا هذه التي تسمى بالجامعة الإسلامية رياض الصالحين بوتنبو تصير أعظم مركز للتعليم والتدريب في هذه الدولة، فلله على ذلك حمدا كثيرا. أيها الإخوة، إلى جانب التدريس إن في مدرستنا شعب مختلفة، أي شعب شتى للتدريب والتعليم من أقسام المهمة، ومنها النادي العربي. أيها الإخوة، وإنه من دواعي السرور لنا جميعا أن طلابنا يشاركون فيه بكل رغبة وشوق وحمية وحماسة، فلله على ذلك حمد. أيها الإخوة، إن النادي العربي من أهم شعب هذه المدرسة. كونوا على ثقة إنكم تشاركون في هذه النادي العربي برغبة وشوق جليل وعزم عظيم. كونوا على ثقة إذا تم الحفاظ على هذا الحماس فيثبت بالتأكيد أنكم ستكونون من أشد المدافعين للإسلام إن شاء الله تعالى. فعلى هذه المناسبة العظيمة لهذا الاحتفال الشهري أقدر وأكرم خدمات المعلمين وبذل مجهوداتهم في هذا الصدد، وأهنئهم تهنية مباركة ميمونة لهذا الصدد، وبأمك قلبي. وأخيرا أدعو الله تعالى أن يزدهر ازدهارا كاملا لهذه المدرسة، وأدعو الله تعالى أن تكونون معاونين على هذه القافلة الإسلامية العلمية الدينية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. اچھا لگا، بہت اچھا لگا. یہ ہمارے طلبہ جو ہے ہماری توقعات سے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، اور درسیات کے ساتھ ساتھ جو ہماری، ویسے میں ان کو غیر درسی سرگرمی نہیں سمجھتا، کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے اپنے یہ جذبات رکھے ہیں کہ آپ جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ یہاں سیکھتے ہیں، اگر اس کو کہیں بیان کرنے کی صلاحیت آپ نہیں رکھتے ہیں، دوسرے کو آپ پڑھا ہوا سبق سنا نہیں پاتے ہیں، سمجھا نہیں پاتے ہیں، تو پھر آپ کا پڑھنا لکھنا تو بے حاصل سے ہو جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ
آپ یہاں جو درسی کتابیں پڑھتے ہیں، جتنی ان کی اہمیت ہے، جتنی وہ کتابیں آپ کے لیے اہم اور ضروری ہیں، آپ کے درجات کی پابندی آپ کے لیے جتنی اہم اور ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں اسی طریقے کی ایک درسی سرگرمی النادی العربی بھی ہے، یا جمعیت الاصلاح کے عنوان سے اس پلیٹ فارم سے ہماری جو بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی اہمیت اس سے کسی حیثیت کم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بزم شیخ العالم ہے، یا آپ بیت بازی کا خوبصورت وہ بزم آپ آراستہ کریں، یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی درسیات میں شامل ہیں۔ لیکن بہرحال یہ کہ یہ ہماری درسیات کا مستقل حصہ اس طور پر نہیں ہوتی ہے، یہ ہمارے سلیبس کا، تدریسی سلیبس کا حصہ نہیں ہوتی ہے، اس کا امتحان نہیں دینا ہوتا ہے، اس کے نمبرات ملنے نہیں ہوتے ہیں، اور ہمارے سالانہ نتائج میں اس کے نمبرات کہیں پر جڑ کر کے ہماری اس پوزیشن میں کوئی فرق واقع نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے بعض طلبہ اس ضمن میں بہت ہی کوتاہیاں برتتے ہیں۔ لیکن تجربہ یہ ہے اور مشاہدہ یہ ہے کہ جو طلبہ ان آراستہ ہونے والی بزموں کے سلسلے میں لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، تو اپنی عملی زندگی میں اگرچہ وہ کتابوں کے پختہ ہوتے ہیں اور علمی گہرائی اور علمی تعمق اور علمی توسع اور علمی نکات، سب چیزوں کے وہ مالک ہوتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی انہیں بے شمار مرتبہ بڑے بڑے مجموع میں جب وہ کہیں پر بات 5 منٹ کی کہہ پانے کی پوزیشن میں اپنے آپ کو محسوس نہیں کر پاتے، تو انہیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے اور اپنے پڑھے پر ان پر پشیمانی ہوتی ہے۔ اسی لیے مجھے خوشی ہے اللہ کے فضل سے، میں دل سے اپنے ان اساتذہ کو مبارکبادی، تو مبارکبادی خالی زبانی مبارکبادی دینے سے میرا جی بھرتا بھی نہیں ہے اور میں اس کو ایک رسم سمجھتا ہوں، لیکن یہ کہ میں دل سے ان کو دعائیں دے سکتا ہوں اور وہ الحمدللہ میرا دل ان کو دعائیں دے رہا ہے۔ میں ذاتی طور سے بہت ہی نادم اور شرمندہ رہتا ہوں کہ میرا بہت زیادہ حصہ اس قافلے کو پروان چڑھانے میں نہیں ہے، اس میں زیادہ تر حصہ آپ کے اساتذہ کا ہے، آپ کے ناظم تعلیمات صاحب، آپ کے نائب محتمم صاحب، اور ان کے کیا نام اس کا نگرانی میں اور ان کی رہنمائی میں، ان کی سرپرستی میں جو یہ پورا مخلص قافلہ الحمدللہ آپ کی سرپرستی کر رہا ہے، آپ کی نگرانی کر رہا ہے، تو ان سب کی محنتیں ہیں اور ان سب کی دلچسپیاں ہیں کہ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بوٹنگ کسی پہاڑ بٹس پٹھن یا چیرہارس ویری چلن وول لکٹ مکٹن مدرسن، جس کے بارے میں ابھی بھی بعض لوگ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ یہ بھنور میں پھنسا ہوا بھنور میں پھنسی ہوئی ایک ایسی نیا ہے جو ابھی بھی مجدار کے تھپیڑوں کی شکار ہے، اور کب ڈوبے گی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بعض لوگ جو بہت ہی ناقص یقین کے مالک ہوتے ہیں اور بہت ہی کمزور قلب و جگر کے مالک ہوتے ہیں اور کسی ٹھوس عزم کے جو مالک نہیں ہوتے ہیں، تو بعض لوگ ابھی بھی اس ادارے کے بارے میں اس بدگمانی کے مرتکب ہیں، لیکن یہ ادارہ اللہ کے فضل سے ان اساتذہ کی بے لوث کاوشوں سے، آپ طلبہ نظام کی کیا نام اس کا انتھک محنتوں سے اور آپ کے شوق و ذوق سے، آپ کی دلچسپیوں سے اب دھیرے دھیرے پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ میرے لیے بھی حوصلہ بخش ہے، آپ سب کے لیے بھی، جو شخص بھی چاہے۔ یہ ہمارا قافلہ اتنا ہی نہیں ہے، یہ بچ ہاتھ بیچے اس استاد اردہ اتنا ہی نہیں ہے، نہیں، بلکہ وہ زنگیرس مزن تقریباً 47-48 گام یا 50 گام، یہ 50 گامن مزن زنگیر کن باغن ریاست کت کر کے، حالانکہ ہمارے پاس ریاست کے اکناف و اطراف سے جو افراد ہیں وہ ہمارے کارواں کا حصہ ہے، لیکن بطور خاص زنگیر کی 47-48 گام یہ پورا علاقہ اس ادارے کو اپنی امیدوں کا اور اپنی خوابوں کا مرکز سمجھ رہا ہے۔ ابھی تک مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑی توقعات وابستہ کی ہیں اور بڑے خواب سنجوئے ہیں اپنے دل میں ہم سے وابستہ کر کے، کیا پتا ہم لوگوں کی یہ جو ایکسپیکٹیشنز ہے
जो हमारी कुव्वत से हमें अपने तौर पर बहुत ही बियॉन्ड दिख रही थी और हमारी कुव्वत से जो हमें बालातर नजर आ रही थी, हमें महसूस हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की ये तवक्कात हमारे जरिए से चकनाचूर हो जाए। लेकिन अल्लाह का करम है, मेरा दिल अंदर से गवाही दे रहा है और मुझे इस बात पर यकीन है कि इस मदरसे का क़याम बहुत ही धुली धुलाई नीयत के साथ वजूद में ये इदारा आया है और बहुत ही इखलास के साथ इस इदारे का पत्थर पड़ा है। इसमें कहीं पर नफ्स की कोई शमूलियत नहीं है, शख्सियत का कोई उन्सर इसमें शामिल नहीं है, तिजारत और माश की कोई हकीर गरज इसमें शामिल नहीं है। महज अल्लाह की दीन की खिदमत हमसे हो। अल्लाह अपने नौकरों में और अपने गुलामों में इस काफिले को शामिल करे और उसके जरिए से हमारी दुनिया भी संवरे और हमारी आखिरत भी संवरे। इस इरादे से इस मैदान में हम कूदे हैं। इसीलिए आज उस नीयत के साफ सुथरी नीयत के साफ सुथरे नताइज हमें इन आंखों से देखने को नसीब हो रहे हैं। मेरे असातिज़ा ने, मौलाना ज़करिया साहब, जब हम लोग नीचे मदरसा चलाते थे तो उस वक्त बड़े हालात थे इदारे के, आज भी हैं, हमेशा रहते हैं। इदारे के जिम्मेदारान और इदारों से वाबस्ता ये जो एक क्या खिरका पोशों का जो ये काफिला और टोला है, ये हमेशा हालात और मसाइल से जूझता रहता है। लेकिन ये कि अभी हालात की शिद्दत कभी कम और ज्यादा होती रहती है। उन दिनों आज के मुकाबले में हमारे हालात ज्यादा सख्त थे, तो मैं बहुत ही आबदीदा हो गया था जब मौलाना ज़करिया साहब यहाँ तशरीफ लाए थे। सिराजुल उलूम फिर दारुल सोपोर से होते हुए हमें अपनी आमद से नवाजा था। नीचे जहाँ मकतब सबील रशाद आजकल कायम है, उसी मकतब में 4 कमरों में हम लोग किराए पर इदारा चला रहे थे। तो उस वक्त मैंने हजरत के गोद में अपना सर रख करके, जिस तरीके से एक बच्चा अपनी माँ की गोद में फिर अपनी तकलीफ आंसुओं के रास्ते से बयान कर देता है, तो मैंने अपने हालात हजरत के सामने रखे और मेरे उस बयान ने हालात मेरे उस्ताद मोहतरम को भी जैसे तोड़ के रख दिया और वो भी आबदीदा हुए। फिर उनके हाथ में चूंकि वो जो असा था, उन्होंने माथे के साथ ऐसे टेका, कुछ देर तवक्कुफ किया। मुझे लगा कि हजरत जो है अब जो है सीधे अल्लाह के साथ राब्ता बना रहे हैं कि मेरा ये कमजोर तालिब इल्म अपनी नातवानी का, अपनी कमजोरी का, अपनी बेबसी का इंतहाई ज्यादा शिकार है। लिहाजा उन्होंने अल्लाह के साथ जैसे राब्ता किया हो कि परवरदिगारा इसको संभाला दीजिए, इसको सहारा दीजिए, इसको बिखरने मत दीजिए, टूटने मत दीजिए। तो उन्होंने उस वक्त जो जुबानी तौर से दुआ दी थी कि मियाँ सजाद, मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हारे इस लगाए हुए पौधे को तुम्हारी हयात में ही पूरी बहारों के साथ समरावर कर दे और तुझे इस लगाए हुए पौधे की बहारें देखना नसीब हो। तो अल्लाह के फजल से बहुत कम वक्त में मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ने अपनी इनायतें हम पे निछावर की। हमारे असातिज़ा की दुआएं हमारे हक में कबूल होती नजर आ रही हैं और मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम वक्त में हमारा इदारा बहुत तरक्की कर रहा है। और अब मुझे ये डर नहीं है, क्योंकि मेरा एक अल्लाह के फजल से अल्लाह ने अवाम में एक एतबार बख्शा है। मुझे बड़ा डर लगा रहता था कि मैं जो मेंबरों पे जाकर के इदारे का तारुफ देता हूँ, कभी कोई मेरा गरेमान पकड़ करके ये ना कहे कि मौलवी साहब जो क्या थे आसा होना मगर तक छी नहीं। लेकिन अब अल्लाह के फजल से मेरी छाती फूल रही है खुशी से। तहदीसी नेमत के तौर पर मैं अकड़ नहीं रहा हूँ, बल्कि तहदीसी नेमत के तौर पर ये अंदर से वो जज्बात मेरी खुशी के हैं जिनसे मेरी छाती फूल रही है और तहदीसी नेमत के तौर पर इसका तज़किरा कर रहा हूँ कि अब खुशी से मेरी छाती फूल रही है और अल्लाह के बारगाह में सर्व सुजूद होने का जी चाह रहा है कि अल्लाह ने जो है बहुत कम वक्त में बहुत नवाजा। अच्छे तलबा हमारी नसीब में आए, अच्छे असातिज़ा हमारी नसीब में आए, अच्छी जगह, अच्छा माहौल हमारे नसीब में आया, अच्छे सरपरस्त, अच्छा इलाका, अच्छे लोग, अच्छे माविन हमारे नसीब में आए। जो जो कुछ चाहिए था एक अच्छे इदारे को परवान चढ़ने के लिए, अल्लाह ने वो सारी चीजें अपने फजल से हमको अता फरमाई है। लेकिन अब इस काफिले को संभाले रखना, इसको मजीद, क्योंकि ये हमारी मंजिल नहीं है, ये हमारी इंतहा अभी नहीं है। हम तो अभी ये समझते हैं कि अभी हम बस
वन मजलिस मज वन ओल येरा। अभी जो इरादे हमारे हैं, जो मंसूबे हैं, जो अजायम हैं, जो हमारे प्रोग्राम है, वो अभी खुले नहीं है। वन थोड़ा मसरूफ ओल येरन सतन, संवारन सतन, संभालन सतन। अजायम जब खुलेंगे तो इंशाअल्लाह मुस्तान पूरी रियासत नहीं, पूरा मुल्क नहीं, और बल्कि पूरे आलम पर इसके असरात पूरी नफा के साथ इंशाअल्लाह मुरतब होंगे। और अब सब जो है अपने अपने इलाकों के नहीं, बल्कि अल्लाह इंशाअल्लाह पूरे आलम में आप सबसे काम लेगा। आपके वालिदैन ने बड़ी कुर्बानियां दे करके, आप में से अक्सर बच्चे पढ़े, आप अपने वालिदैन के लिए कमाई का जरिया हो सकते हैं। दोस्त गो मजूर शाम रोपिस 7 शाम रोपिस 1,000 मलिस मिलन रेतस रोपिस 50,000 तुम जरिए, तो उन्हें सहारा मिलता आपके जरिए से। लड़का वैसे भी कफील होता है, आपको पता है ना, ये अकीके पे लड़के के 2 बकरे काटने होते हैं और लड़की के अकीके पे 1 ही काटना होता है। उसकी क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या वजह है? बेटी भी औलाद है और बेटा भी औलाद है। तो इसमें तो एक ये चीज है कि न्यामत औलाद अल्लाह ने अता की, तो उस न्यामत के मिल जाने पर 1 बकरा, फिर लड़का बाप का बाजू बन जाता है, ये इसका कफील बन जाता है। ये दुनिया चन कायमन मज अथरुट करा, अकार बकार कायमन मज मददन करा, तो इसको अब कफील भी मिल गया, औलाद भी मिल गई और कफील भी मिल गया, तो इस पे दोहराना शुक्र लाजिम आता है। इसीलिए 2 बकरे काटे जाते हैं लड़के के उस पे। तो आपके वालिद साहब आपसे जो है दुनिया का काम ले सकते थे, है ना। आपकी माँ को पता है मेरा बच्चा सुबह जगता है, ये उसने गई 8 बजे तक दिवा था कि आपकी माँ को पता है कि अगर सीने से तील कम ऐसे या बद तकुर ऐसे कुछ साथ नरम ऐसे मेन बच्चो बदमाना खोने कहें, खबर तक ऐसे दाल सतन सह तिल रुस्ती मे बगैर दाल तमिस तथ गुजार कर। तक सर्दी मज गर्मी हंद इंतजाम की, गर्मी मज सर्दी हंद इंतजाम की, ये सब आपकी माँ को पता है, ये सब आपके वालिदैन को पता है। जो कुछ आपसे फायदा हो सकता था दुनियावी फायदा, आपके वालिदैन ने उस फायदे की भी कुर्बानी दे दी। और आपको हालात में, उनको पता है हमारा बच्चा हालात में अच्छा खा नहीं पा रहा है, अच्छा रहन सहन नहीं है ना, ढंग का माहौल नहीं है दुनियावी एतबार से, ये सब पता है। लेकिन ये कि हमारा बच्चा कुछ बन सके, है ना, इसका मुस्तकबिल संवर सके, या अपनी कौम मिल्लत के काम आ सके, इसके जरिए से हमारी आखिरत बने, या आखिरत में हमारे लिए जन्नत के रास्ते को हमवार करने का बायस और जरिया बने। इसके जरिए से इसका भी भला हो, इसके माशरे और समाज का भी भला हो, इसकी कौम का भी भला हो, इसकी पूरी दुनिया का इसके जरिए से भला हो। लिहाजा हम आज ये सारे शदायत, ये सारे मसाइब, ये सारी मुश्किलात आज बर्दाश्त करेंगे अपने बच्चे के बेहतर कल के लिए अपने, है ना। मैंने कई मरतबा आपको बताया, पाजा सुरा की जिंदगी में आप उठा करके देख लीजिए, हमारे शेख और मुर्शिद मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी अलैहि रहमा बार बार फरमाया करते थे कि वो माँ अपने बच्चे की खैर खा नहीं हो सकती जो माँ लाड़ प्यार में हमेशा अपने बच्चे को सीने से चिमटाए रखे। पता या मोज मनाशी चवर मिनट पहाड़ नहीं रखी, मनाशी आगर चवर नहीं रखी। जो माँ इस शिद्दत के साथ अपने बच्चे को सीने से लगाए रखे और उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए उसको अपनी नजरों से और अपनी सीने से दूर न कर सके, वो माँ अपने बच्चे की खैर खा माँ। आपकी माओं ने बड़ी खैर खाई की है। लिहाजा तो ये आमितन ये जरा मलिस माज खाबन हंदन अरमानन मलिस माज खाबन तो अरमानन हज रियायत करें। अगर इस मलिस माज खाबन तो अरमानन वनकस रश करो सुबह गई सान अरमानन तो सान खाबन रश। अगर अल्लाह बचे इस मलिस माज खाबन तो अरमानन आज सूर करो, है ना, अल्लाह हिफाजत करे खबर सान खाबन तो सान अरमानन तो मगर सान सूर। थो वनकस मलिस माज पन्निस रिश्तस मज पन्निस इलाकस मज इज्जत पन्ने इखलाक से पन्ने किरदार से पन्ने सलाहियत से पन्ने वतन बेन से। कल को हमारे बच्चे इलाके में हमारे लिए इज्जत और इफ्तिखार का बाइस बनेंगे। इसीलिए यहाँ अपने औकात की कदर कीजिए, है ना। और सबसे अहम बात यह है कि आखिरत बना, दुनिया बनानी होती तो दुनिया बनाने के बड़े कारखाने हैं, बहुत कारखाने, जा बजा दुनिया बनाने के कारखाने हैं। लेकिन तुम नहीं पता कि पन आखिरत बना
जब हम यहाँ आखिरत बनाने आए हैं तेल अगर तुह बह नसीहत लागमो कर कि गोबरो नमाज ना त्रावान कहें अक्सर तलबा ने यहाँ नमाज की है ना अहमियत पर तकरीरें की, लेकिन हमारे बहुत सारे बच्चों के बारे में बड़ा दिल दुखी हो जाता है। ये शिकायत है कि सभी बच्चन करा नमाज पर पाबंदी की, तो इससे तकलीफ होती है कि हम यहाँ आखिरत बनाने के लिए आए तम पे इखलाक सुध गसान कहें, अच्छे तरबियत सुध गसान कहें, अच्छे सलान हुन माहौल बना कहें, अच्छे रित आदाब तो सलीक इस्लामी आदाबन झलक छन मज लबन यहाँ कहें, है ना। मज सफाई सुथराई की, जैसे मैंने कहा ओतर कमोड बाथरूम मज बत त्रोमुत, जिसने भी डाला तो तिमस ओस ना ये है। एक तो ये हो गया कि गंदगी फैला दी, दूसरा ये हो गया कि मदरसे का नुकसान, तुम गसन बुलाक मदरस को नुकसान, तीसरा ये कि नियमत की बेकदरी। तो याद तो याद कि अगर मे पवन बचपन याद अगर अलग बत फलिस पे लत पे गरस मज अति बुढ़बा वथान लोर सह दपा जंग चटे कमर फुटरावे अच्छी बत फलिस रिजकस कर लत बोड़ रिजक कामन करी खुदा बत फलिस पे मामूली लत पे कैसे हिम्मत करते हैं हम कि बत फलिस चीज कमोड़ वरिस बाथरूमस मज इन साथ अगर योर कह मेहमानी से क्या करे मुतलिक राय कही तो सफाई सुथराई का, अपने औकात की कदर, अपने आदाब को संवारना, नमाजों की पाबंदी, अपने अमाल को दुरुस्त बनाना, हर वो अमल जो आपको इल्म से दूर करे, हर वो अमल जो इल्म के रास्ते में आपके लिए रुकावट और माने साबित हो, हर वो अमल जो आपको अल्लाह से दूर करे, हर वो अमल जिस अमल के करने से आपके वालिदैन को कभी हजीमत का सामना करना पड़े, हम इंशाल्लाह हम उस हर अमल से बचने की कोशिश करेंगे। ये चंद बातें याद रखिए, मैं बहुत ही बेतरतीब तरीके से बातें कर देता हूँ, जो चीज़ आ जाती है अपने बच्चे समझ करके, एक बच्चों का बाप और छोटे भाइयों का बड़ा भाई जो कुछ बात कह सकता है, मैं तकरीर नहीं करता, बस दिल से कुछ बातें, और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे हजरत कभी फरमाया करते थे दिल कहे और दिल सुने, तो दिल में जो होता है वो चाहता हूं कि आप उसको दिल में जगह दे दें, और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज वगैरह रखती है।